نجات جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے۔ خدا کا جو خیال ہے وہ انتہائی قیمتی اور اس کے وعدے انتہائی بڑے اور بے شمار ہیں، وہ ہمارے لیے ہے۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع کے نام میں آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے غور کریں گے امید کے تعلق سے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، امید کے بار آنے کی تاخیر میں دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں کہ جب ہم کو امید ہوتی ہے کسی چیز کی تو ہمارا ایمان بھی پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم نے ایماندار ہونے کے ناطے سے ہم نے خدا کے پاک کلام کے وعدوں پر یقین کرنا ہے، ان پہ امید رکھنی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں ابراہیم کے تعلق سے کہ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا۔ لیکن ہم اس کے ساتھ ایک اور بھی واقعہ ہے، وہ دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا 6 اور 7واں باب، کہ یہاں پہ جب بنی اسرائیل قوم خدا سے برگشتہ ہو گئے، خدا سے دور ہو گئے، تو ان کے گناہ کی وجہ سے دشمن نے ان کا محاصرہ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب اس کے 28 باب میں اس کا سارا ذکر ہے۔ لیکن جب امید کے بار آنے میں تاخیر ہوئی تو پھر جو لوگ ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ بدل جاتی ہے، سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بارے میں، خدا کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ابلیس کو موقع ملتا ہے اور جو کچھ ان کو خوف ہوتا ہے، جو کچھ نیگیٹو باتیں کرتی ہیں، وہی ان کی زندگی میں وقوع میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے، اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم نے ہمیشہ پر امید ہونا ہے، پازیٹیو باتیں کرنی ہے، کیونکہ زندگی اور موت جو ہے وہ زبان کے قابو میں ہے۔ اگر آپ زندگی کی باتیں بولیں گے تو آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ جو پر امید باتیں ہیں، جو خوشگوار باتیں ہیں اور جو ترقی کی باتیں ہیں، وہ ہماری زندگی میں وقوع ہوں گی۔ تو اس لیے آئے ہم مل کے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ نکالیں رومیو کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں اور خدا کے روح سے کہیں کہ آج ہمارے ساتھ وہ بولے، کلام کرے اور ہمیں اپنی راہوں پر لے چلے۔ آئے ہم دعا کریں۔
खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ तेरे पाकलाम के लिए, तेरे प्यारे लोगों के लिए। खुदा रुल कुद्दस तू मेरी मदद कर, तेरा मस्सा चाहता हूँ। और खुदाउन आज तू हम में से हर एक की जरूरत के मुताबिक और खुदा बाप हमारी तरक्की के लिए हमसे हम कलाम हो, ताकि हम अपनी जिंदगियों से तुझे जलाल दें, तुझे खुश करें, यीशु के प्यारे नाम में, आमीन आमीन। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, यहाँ पे हमने पढ़ा कि खुदा ने अब्राहम के साथ जब अहद किया, उसने उसके साथ वादा किया, उसको कसदियों के ओर से बुलाया, उसने कहा कि उस जगह पे जा जहाँ पे खुदा उसको चाहता था कि वो जाए। जब वो सब कुछ छोड़कर उस जगह पे चला गया और खुदा के साथ चलता रहा, और खुदा ने उसके साथ फिर वादा किया कि मैं तुझको औलाद दूंगा, तेरी औलाद जो है वो आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानद होगी। और फिर उसने कहा कि तू कौमों का बाप होगा, और खुदा ने उसका नाम जो था वो चेंज कर दिया, अब्राम से अब्राहम उसका नाम रखा, यानी कौमों का बाप। तो मेरे अजीजों, फिर हम आगे देखते हैं कि जब खुदा ने उसके साथ वादा किया, वो खुदा के साथ आहद में शामिल हो गया। तो फिर जब इस वादा के पूरे होने में देर लगी, ताखीर हुई, तो फिर हम देखते हैं कि जो अब्राहम था ये गालबन 75 वर्ष का था जब खुदा ने इसके साथ कलाम किया, और ये 85 वर्ष का जब हुआ तो फिर जो सारा थी उसने कहा कि अच्छा है कि तू मेरी लौंडी के पास जा और ताकि औलाद हो। अब मेरे अजीजों, कई दफा जब खुदा हमारे साथ वादा करता है और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो वादों से भरा पड़ा है, तकरीबन 7000 से ज्यादा वादे हैं जो मेरे और आपके लिए हैं, और हमारी जिंदगी के हर पहलू के लिए जो भी हमें जरूरत है, जो भी मुश्किलात हैं, दुश्वारियां हैं, हर एक के लिए कोई ना कोई वादा है, और हम उसको अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी जिंदगी में वो वादे की जो तकमील है उसमें ताखीर आती है, तो फिर हम कुछ डामाडोल से हो जाते हैं, हम शक करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर बेईमानी और बेइत्कादी आ जाती है, और जब हम नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देते हैं, तो मेरे अजीजों, जो हमारे जिंदगी में खुदावंद मौजज़ात करना चाहता है, अपने वादे पूरे करना चाहता है, वो हो नहीं पाते, क्योंकि बजाय कि हम अपने आप पर, हालात पर जिंदगी बोले और खुदावंद के वादे जो है उनका यकीन करें ताकि वो पूरे हों, तो जब हम नेगेटिव बातें करते हैं, जब हम मायूसी की, नाउम्मीदी की बातें करते हैं, तो फिर हालात जो हैं वो यकसर बदल जाते हैं। और जब हम खुदा के कलाम की बजाय, रूह की बजाय, जब हम जिस्मानी तौर से आंखों देखे पर चलते हैं, और जो कुछ हम महसूस करते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हालात हमको कहते हैं, जब हम उसके मुताबिक फैसले करते हैं, तो मेरे अजीजों, उनका जो असर है वो हमारी जिंदगियों पर, हमारे खानदानों पर मुद्दतों तक रहता है, बल्कि सदियों तक रहता है। और हम देखते हैं अब्राहम के ताल्लुक से, जब सारा ने उसको कहा कि मेरी लौंडी के पास जा ताकि औलाद हो, तो हम देखते हैं कि अभी तक उसके असरात जो हैं जिस्मानी फैसलों के, वो हम रूनुमा होते हुए देखते हैं। और लोग जो हैं जब भी जिस्मानी फैसले करते हैं तो दुख उठाते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, रोमियो के खत में, अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर ही मरोगे। तो मेरे अजीजों, हमने बड़े खबरदार होना है कि जब खुदा के वादा की तकमील में ताखीर होती है,
तो हमने नेगेटिव बातें नहीं करनी, हमने मायूसी की, नाउमीदी की बातें नहीं करनी। और हम देखते हैं अब्राहम के ताल्लुक से कि यहाँ पर वो खुदा ने जब उसके साथ वादा किया तो अगरचे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे भी हालात आए, कई दफा उसने नाफरमानी भी की, कई दफा ऐसी बातें भी आई जो खुदा नहीं था चाहता कि आए, लेकिन एक बात थी कि वो मुसलसल खुदावन के साथ ईमान में मजबूत रहा। अगरचे शक आए, हालात आए और फैसले गलत भी हुए, लेकिन फिर भी वो उठा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है सादक जो है 7 बार गिरता है फिर उठ खड़ा होता है। और यहाँ पे जो अब्राहम था, हम पढ़ते हैं जैसे हमने पढ़ा 18वीं आयत में कि वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, यानी आसमान के तारों की मानत होगी, बेशुमार होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। अब जब वादा में ताखीर हुई तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका हल क्या था। वादा जो था उसका पूरे होने का जो तरीका है, आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में कि वो क्या है। अब जो ईमान है वो उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद है। इससे पहले कि ईमान जो है वो उसका जो इत्माद है वो हमारी जिंदगी में आए, उसका ज़हूर हो, ईमान से पहले हमने उम्मीद रखनी है। किस पर उम्मीद? खुदा के जो वादे हैं वो हमको उम्मीद दिलाते हैं। खुदा के वादों से हमें उम्मीद मिलती है, हमारे अंदर एक उमंग पैदा होती है, हमारे अंदर एक जिंदगी की लहर जो है वो दौड़ जाती है कि खुदा सच्चा है, वो कादर है और वो साहिबे जंग है और वो हमारी जिंदगी में अपने जो वादे हैं उनको पूरा करेगा। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और खुदा के कलाम के ताल्लुक से हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो आसमान पर अब तक कायम है। खुदा का कलाम जो है वो अटल है। खुदा का कलाम जो है वो सारी कायनात को संभाले हुए है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो अब्राहम है वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। और आज जो हमारे पैगाम का टाइटल भी है वो ये है कि अब्राहम अगेंस्ट होप believed in hope and he saw the manifestation of the promise of God. So यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ही ईमान लाया। और फिर हम पढ़ते हैं और वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में कमजोर ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। अब यह है कि जब हमारे जो खुदा का वादा हमारी जिंदगी के खास पहलू के लिए है, जब उसमें ताखीर होती है तो फिर हमने अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। तो फिर अजीजों वो वक्त होता है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। तो वो कैसे करते हैं? जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जब हम खुदा को, उसके वादों को अपनी जिंदगियों में सर बुलंद करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। और बजाय कि हम जो मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, जो दुश्मन और दुश्वारियां हैं और जो हालात हैं और बीमारियां और दर्दें और तकलीफें और नेगेटिव बातें जो हैं, बजाय कि हम उन पे फोकस करें, जब हम खुदा के कलाम पर, उसके वादों पे फोकस करते हैं तो मेरे अजीजों हमारा ईमान जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है। और जो उसका सीक्रेट है, हमारे ईमान की जो मजबूती है
वो ये है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमने शुक्र करना है, हर वक्त खुदा उनका शुक्र करते रहना है। और जब हम खुदा उनका शुक्र करते हैं तो खुदा उनकी तमजीद करते हैं और फिर खुदा उनको और उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में सर बुलंद करते हैं। आइए हम एक और हवाला देखें। ये है दूसरा सलातीन और उसका 7वां बाब, और हम उसकी पढ़ेंगे पहली जो 2 आयात है। तो वहां पे इस तरह से लिखा है, तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावन की बात सुनो, खुदावन यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मस्काल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाने जो बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे अगर आप 6वां बाब पढ़े, दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब, तो वहां पे लिखा है कि जो एक बादशाह था वो आया और उसने जो ये बनी इस्राएल सामरिया था इसका मुहासरा किया। जब उसने इसका मुहासरा किया तो ये लिखा है कि इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह अराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया, और सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, और यहाँ तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। जब शाह इस्राएल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, है मेरे मालिक है बादशाह, मदद कर। उसने कहा, अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं? क्या खलियान से या अंगूर के कोल्हू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है उसे कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया। दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छिपा दिया। बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था और लोगों ने देखा कि अंदरवार उसके तन पर टाट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शाह अराम था बिन हदद, उसने सामरिया का मुहासरा किया, उसको चारों तरफ से घेर लिया, और फिर इस वजह से सामरिया में बड़ा काल था। अब ये जो गधा है ये नापाक जानवर समझा जाता था, और हम पढ़ते हैं मूसवी शरीयत है कि वहां पे मना किया गया था कि ये जो गोश्त है गधे का इसको नहीं खाना। और फिर हम देखते हैं कि ये जो सब कुछ बनी इस्राएल पर सामरिया शहर में जो लोग बसते थे, ये इन पर इसलिए हुआ क्योंकि इस्तिश्ना की किताब उसके 28 बाब में हम पढ़ते हैं, खुदा ने कहा था मूसा के जरिया से कि जब तुम मुझसे नाफरमानी करोगे, बगावत करोगे, सरकशी करोगे, बुत परस्ती में पड़ जाओगे, तो तुम्हारा ये हाल होगा, बड़ा काल पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो औरतें जिन्होंने कभी सोचा नहीं था वो अपने बच्चों को खाएंगी। तो ये सारी डिटेल में यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ये जो दुश्मन ने उनको घेरा, उनका मुहासरा किया, ये उनकी नाफरमानी की वजह से था, उनकी बगावत और गुनाह की वजह से था, उनकी सरकशी की वजह से था। मेरे अजीजों, आज हमने अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हमारी जिंदगियों में
وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو خدا کے پاک کلام کے خلاف ہے. ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے تاکہ خدا کا روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے. خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے. اور جب ہم میرے عزیزو خدا کو خوش کریں گے اور اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں گے تو خدا ان کے وعدے جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پورے ہوں گے. اب یہاں پہ یہ جو بادشاہ تھا یہ دیوار پر چلا جاتا تھا. یہ عورت آتی ہے اور اس کو جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ وہ کہتی ہے کہ اس عورت نے میرا بیٹا کھا لیا اور آج ہم نے اس کا کھانا تھا تو اس نے اس کو چھپا دیا. جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو یہ انتہائی ہولناک بات تھی. یہ کبھی سوچا نہیں تھا اس کے بارے میں. تو یہ سب کچھ جو تھا یہ بنی اسرائیل قوم کی بغاوت، گناہ، سرکشی، بت پرستی کی وجہ سے ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھا جب اس نے اپنے تن کے کپڑے جو پھاڑے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ نیچے وہ ٹاٹ اڑے ہوئے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو الیشا نبی تھا اس نے اس بادشاہ کو کہا ہو کہ تو خداوند پہ توکل کر، خداوند پہ بھروسہ کر. اب جب الیشا نبی نے اس کو یہ بات کہی تھی تو اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا ہوگا، ٹاٹ اوڑا ہوگا. لیکن جب خدا کے جو وعدہ کیا گیا تھا اس میں تاخیر ہوئی تو اس نے نیگیٹو باتیں بولنا شروع کر دی. پھر یہ اپنا جو ایک رائٹ ہینڈ مین ہے اس کو بھیجتا ہے کہ تاکہ جو الیشا ہے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دے. اور پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں 7ویں باب کی پہلی 2 آیات میں کہ الیشا اس کو کہتا ہے کہ کل اسی وقت خدا جو ہے وہ معجزہ کرے گا. میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تب الیشا نے کہا کہ تم خدا کی بات سنو. اب خدا کا وعدہ، خدا کی بات، یہ جو پروفیٹک بات تھی وہ الیشا نے کہی. اس نے کہا کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. اب جب یہ اس نے وعدہ کیا، یہ بات خدا کی کہی، تو یہ جو سردار تھا جو اس کو مارنے کے لیے آیا تھا اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر خدا آسمان کی کھڑکیاں بھی کھول دے تو بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اب اس قدر وہ نا امیدی، اس قدر مایوسی، اس قدر وہ نیگیٹو جو باتیں تھی اس سے بھرا ہوا تھا کہ خدا وعدہ کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے کہ کل اسی وقت سب کچھ جو ہے وہ کثرت سے ملے گا. لیکن اس نے خدا کی آواز کو ٹھٹھوں میں اڑایا، اس نے اس کا یقین نہ کیا. تو پھر الیشا نے کہا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا لیکن تو کھانے نہ پائے گا. میرے عزیزو، اسی طرح ہماری زندگیوں میں جب ہماری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ ہمارے چگد محاصرہ ہے، جو دشمن ابلیس ہے اور ناپاک روحیں ہیں انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف نا امیدی ہے، مایوسی ہے، اور جو کام ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، جو معجزات چاہتے ہیں، جب ہم ان کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور جب خدا کے وعدے ہیں جب ہم ان کو بھی کوٹ کرتے ہیں تو جب وہ پورے نہیں ہوتے ہمارے وقت پہ تو پھر ہم نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اندر غصہ آ جاتا ہے، تلخی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ خدا کے بارے میں ہم اپنے اندر غصہ اور تلخی رکھتے ہیں، خدا کے بارے میں نیگیٹو باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ ہولناک بات ہے اور ہم نے اس بات سے توبہ کرنی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو نئے طور سے خدا کے سپرد کرنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارا حال جو ہے اسی طرح اس سردار کی طرح ہوگا. ہم دیکھتے ہیں
कि अगर आप ये सारा चैप्टर पढ़े तो वहां पे यही जो फौज थी दुश्मन की, जिन्होंने इनको चारों तरफ से घेरा हुआ था, जब 4 कोढ़ी वहां पे जाते हैं, वो सब देखते हैं कि ये फौज वहां से भाग गई और उनका जो खाने पीने की चीजें थी और जो सोना चांदी था सब कुछ वहां पे छोड़ गए, और यहाँ तक कि अपने जो घोड़े थे उनको भी छोड़ गए, और खुदावन की दहशत उन पे छा गई। आप इस सारे चैप्टर को पढ़े तो वो जब आके खबर देते हैं तो ये सामरिया के जो लोग हैं बाहर जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये जो सरदार था ये सामरिया शहर के गेट पर था ताकि लोगों को डिसिप्लिन कर सके, लेकिन वहां पे रौंदा गया। अगर हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द नहीं करते, उसके वादों का यकीन नहीं करते, तो मेरे अजीजों जो हालात हैं, जो दुश्मन और दुश्वारियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो बीमारियां हैं और जो भी नेगेटिव बातें हैं, ये हमको रौंद डालेंगी, ये कुचल डालेंगी, ये हलाक कर देंगी, और खुदावंद के जो वादे और मौजज़ात हैं उनकी तकमील को हम अपनी जिंदगियों में नहीं देख सकेंगे, ना ही उनका ज़खूर अपनी जिंदगियों में देख सकेंगे। तो इसलिए हमने बड़े खबरदार होना है, हमने अब्राहम की तरह होना है, नाउमीदी की हालत में भी उम्मीद के साथ ईमान रखना है। तो मेरे अजीजों, जो खास बात खुदा ने मेरे दिल में डाली थी वो ये है कि ना उम्मीदी में भी हमने उम्मीद के साथ खुदा पर ईमान रखना है, उसके वादों पर ईमान रखना है। हमने पॉजिटिव बातें करनी है, हमने नेगेटिव बातें हालात के मुताबिक जो कुछ हम फील करते हैं या जो कुछ हम देखते हैं उसके मुताबिक फैसले नहीं करने, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक करने हैं। और जब अब्राहम जो था, जब वो 99 वर्ष का हुआ, अब ज़ाहिरी तौर से यूं था कि मेडिकली हर तरह से जो सारा थी वो भी औलाद नहीं पैदा कर सकती थी, इसी तरह अब्राहम की हालत थी, और ज़ाहिरी तौर से, और अगर आंखों देखे पे चला जाए मेडिकली तौर से हर चीज जो थी वो ना उम्मीद लगती थी, मायूसी लगती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने खुदा का यकीन किया, उसके वादों का यकीन किया, ना उम्मीदी में उम्मीद के साथ वो ईमान लाया। तो जब ऐसा किया तो खुदा के वक्त पर उसके बेटा हुआ। और मेरे अजीजों, फिर आगे हम देखते हैं कि जब उसकी नस्ल से फिर आगे खुदा यीशु मसीह आया, तो जैसे खुदा ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा, और तेरी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी और तेरी नस्ल से बादशाह भरपा होंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की बदौलत आज सारी दुनिया में जहां पर भी खुदा के खादम हैं मनादी करते हैं, यीशु की बदौलत कौमें बरकत पा रही हैं और हमेशा की जिंदगी जो है उसको हासिल कर रही हैं। और आज जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपना दिल उसको देता है, तो उसको अपने लहू से धो देता है, उसको पाक साफ कर देता है। और यही मेरे अजीजों यीशु मसीह कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर कोई बाप के पास आ नहीं सकता, और आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात मिल सके। और जो अब्राहम था वो नाउमीदी में उम्मीद के साथ ईमान लाया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बादशाह था ये भी बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ था, मायूसी से, नाउमीदी से भरा हुआ था। और वो दूसरा सलातीन 7वें बाब की 12वीं आयत में पढ़ता है, कहता है कि शायद ये दुश्मन ने हमारे साथ चाल चली है ताकि हम शहर से बाहर जाएं और वो फिर हमको
मार दे और शहर पे कब्जा कर ले। तो मेरे अजीजों, हमने बड़े खबरदार होना है। उम्मीद के बार आने की ताखीर में दिल बीमार हो जाता है। तो हमने जो एक बीमार सोच है, जो नेगेटिव, गलत, मायूसी के, नाउमीदी के अल्फाज हैं, उनको नहीं बोलना। और जब हम अपनी सोच को ठीक करेंगे, अपने ख्यालों को खुदा के कलाम के सांचे में ढालेंगे और खुदा के ख्यालों को अपनाएंगे, और जो हमारे अपने ख्यालात हैं, वो जो नेगेटिव ख्यालात हैं, उनको जैसे पौलुस रसूल कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 10 बाब में कि हमने हर ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देना है। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमने खुदा को, उसके वादों को अपनी जिंदगियों में अवलियत देनी है, उन पे फोकस करना है। हमने मायूसी, नाउमीदी की जो बातें हैं उन पे गौर नहीं करना, उन पे मेडिटेट नहीं करना, उन पे फोकस नहीं करना, बल्कि खुदा पर, उसके वादों पर, क्योंकि खुदा एक कादिर है, अब्दियत का बाप है, और वो साहिब जंग है जो हमारे लिए जंग करता है। तो आए हम जिंदा खुदा पर ईमान रखें, अब्राहम की तरह। वो नाउमीदी में उम्मीद के साथ ईमान लाया कि वो बहुत सी कौमों का बाप हो, और ऐसा ही हुआ। तो मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा जो है आपकी जिंदगियों में जो उसके वादे हैं उनको पूरा करना चाहता है। इसलिए आप उम्मीद रखें, ईमान रखें, ताकि खुदा उनके वादे जो हैं वो आपकी जिंदगियों में पूरे हों। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे। और आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए हम मिलकर दुआ करें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे पाक कलाम के लिए। ये जो कलाम का बीज इन दिलों में बोया गया, उगे, बड़े और बहुत सा फल लाए, शरीर इसको छीनने ना पाए। और खुदा बाप, मैं तेरे प्यारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, इनके लिए बरकत चाहता हूँ। और तेरा खुदा का रूह जो है, तेरा जो कलाम और वादे हैं, इनके अंदर एक उम्मीद पैदा करें, एक खुशी पैदा करें, ताकि खुदा बाप ये तुझको, तेरे वादों को, तेरे कलाम को तकते रहें, और ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, ताकि इनका ईमान जो है वो मजबूत रहे, और तेरे वादे जो हैं इनकी जिंदगियों में पूरे हों, और इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले। और अब्राहम की तरह नाउमीदी में उम्मीद के साथ ईमान रखें, ताकि तेरे वादे इनकी जिंदगियों में पूरे हों। और खुदा बाप, एक एक को छू, एक एक को शिफा दे, एक एक के बंधनों को तोड़, और इनके बदनों में जो भी बीमारियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी दर्दे हैं, वो यीशु के नाम से जाती रहें। एक एक को छू। और खुदा बाप, जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको जॉब्स दे, और उनकी हर जरूरत को अपने पाक खजाना से पूरा कर, और इनके घराने की तमाम मुश्किलात यीशु के नाम से दूर हो जाएं। और खुदा बाप, इनकी आंखें तुझ पर लगी रहें, और इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे, यीशु के प्यारे नाम में। आमीन आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे। और मेरे अजीजों, अगर इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली है, तो ये आप दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएं, और एक पुर उम्मीद जो है, और एक जो खुशी की पॉजिटिव, और जो खुदा के कलाम के वादे हैं उन पे गौर करें। और मैं आपको इनकरेज करता हूं कि इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएं और अपने ईमान में मजबूत हों। फिर हम मिलते हैं। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे। आमीन।